Hello everyone and welcome back to my channel, that is A to Z Crazy. So we have already started squares and square root. Today we are going to continue our exercise 4D from question number 2. We are going to continue. So question number 2 is on our screen. That is, a welfare association collected rupees 52,900 as donation from the students. If each paid as many rupees as there were students, find the number of students. So in that question, the question is asking, the question is saying that there are students who are, after collecting lots of donation, they are getting 52,900. In total, they are getting 52,900 rupees. Now we just need to take out that how many students are there. Okay, so whatever the question is asking, we just need to consider it as x. So now let's move further. So here we can say that let number of students, whatever the question is going to ask you, you just need to consider x. So let the number of students is going to be x. Now there are x number of students. I don't, just say for example, I am giving you the example. For example, this is a student. I don't know how many students are there in the class, but a student is going to pay x amount. I don't know how many amounts are it is going to be paid. So let me consider कि इसने x rupees pay किया. Okay. So there are lots of students. तो कितने students हैं? I have said कि यहाँ पर क्लास के अंदर x number of students हैं. x number of students हैं and they are paying x rupees. सबके सब कितने रुपीस पे कर रहे हैं? x रुपीस पे कर रहे हैं. कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. तो टोटल कितना पे करेंगे? हाउ? सो x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. अगर एक स्टूडेंट x रुपीस पे कर रहा है, हर एक स्टूडेंट x रुपीस पे कर रहा है, तो x स्टूडेंट कितने रुपीस पे करेंगे? सो x इंटू एक्स, राइट? ऐसे ही होगा. अगर एक स्टूडेंट x रुपीस पे कर रहा है तो x स्टूडेंट कितने रुपीस पे करेंगे? x इंटू एक्स, which is equals to x square. We are going to use the same logic over here. Okay. Now, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि each student contributed. कितना स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है? That is x. So here I can say x. टोटल कितना कंट्रीब्यूशन है? Which is given. टोटल कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है आपके पास. So total contribution is rupees 52,900. दैट इज द टोटल रुपीज जो कि कंट्रीब्यूट किए गए हैं ये सारे स्टूडेंट्स के थ्रू. ओके. नाउ यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे. सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट वी कैन से कि टोटल कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालेंगे कि कितने बच्चों ने टोटल कंट्रीब्यूट किया है? बाय मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड. सो number of student, we can say number of student into each student contribution. So here what we can say, number of student is x. कितना contribute कर रहे हैं? x. Okay, total contribution कितना है? 52,900. हमने as same यही follow किया है. Okay, now so x into x is going to be x squared 52,900. Okay, now I am just solving it over here. So we can write it like this also. अगर हम स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास आता है अंडर रूट. सो अंडर रूट 52,900. इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व यू विल गेट प्लस माइनस 230. द वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस माइनस 230. बट आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते. सो हियर आई एम टेकिंग x इज इक्वल्स टू प्लस 230 और माइनस 230 को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं दैट रिजेक्टेड. ओके. सो हियर वी कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज x. Here therefore you can say the total number of student is x. Now let's move further with the next question, that is question number 3. So question number 3 is on our screen, that is
1156 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. So in that question also the question is saying the same thing. For example, number of rows, let me consider these are the number of rows. Okay, so मुझे नहीं पता कितने number of rows है. Okay, I don't know. So let me consider x number of rows है. X is going to be your number of rows क्योंकि there are lots of rows. I don't know how many rows are there. Now हर एक रो में कुछ प्लांट्स को प्लांट किया जाता है. हर एक रोज में आई डोंट नो कितने प्लांट्स किए जाते हैं, लेकिन जितने इस रो में प्लांट किए जाएंगे उतने ही इस रो में भी प्लांट किए जाएंगे. सो इक्वल जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स एक रो में प्लांट किए जाते हैं. तो कितने नंबर ऑफ रोज है x, मतलब x नंबर ऑफ प्लांट्स ही प्लांट किए जाएंगे इन ईच रो. So what is going to be your x? Number of plants in each row. So x number of plants in each row. So this is what the question want to say. Now according to the question what we can say? We can say that again हमारे पास total number of plants दे रखे हैं, that is 1156. 1156 is the total number of plants. Total number of plants. So according to the question how we can write? हम ये लिख सकते हैं that total number of plants कैसे निकालेंगे हम? So total number of plants is going to be number of rows into number of plants in each row. So number of rows कितने हैं? That is x. Number of plants each row में कितने हैं? x. और यहाँ पे है 1156. So x square कितना होगा? 1156. तो x की वैल्यू होगी √1156. If you are going to calculate the value of x, then आपको जो x की वैल्यू मिलेगी that is going to be ±34. बट आपको पता है कि आप माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ रोज कभी भी नेगेटिव में नहीं होती. So here we can say that rejected, और हम लेंगे x is equals to 34. Therefore we can say that the total number of rows is equals to 34. This is our final answer. So number of plant in each row is also going to be your 34. Now let's move further. Question number 4. The area of square in each field is 1764. Find the length of the side. So the question is saying कि हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो एरिया है वो है, so we can say that area of square आपके पास given है is equals to 1764 मीटर स्क्वायर. आपको जो कैलकुलेट करना है वो करना है लेंथ ऑफ साइड. सो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ कि स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है, राइट. सो मैं यहाँ पे x कंसिडर कर रही हूँ, x, हर ईच साइड इज x. सो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज साइड स्क्वायर. आप साइड स्क्वायर ले सकते हैं. सो 1764. सो अगर स्क्वायर को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, सो इट इज गोइंग टू बी √1764, राइट. सो 1764 को आप फर्दर सॉल्व करोगे टू टेक आउट द लेंथ ऑफ ईच साइड, सो यू विल गेट समथिंग. आप इसको फैक्टराइज करोगे, सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर. हम एक एक नंबर निकालेंगे एक पेयर से. सो 2 into 3 into 7. सो 3 2 जा 6 into 7. 6 7 जा 42. So here we can say that the each side of the square is going to be 42 meter. This is our final answer. Now let's move with question number 6. So question number 6 is find the square root of 144 and 81 by the method of repeated subtraction. So here repeated subtraction के अंदर we have to use the odd numbers. तो हमारे पास numbers क्या है? 144 का हमें repeated subtraction करना. So हमें जितने भी odd numbers हैं जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, इन सबको हमें माइनस करना है टू टेक आउट दी
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बाय द मेथड ऑफ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आपको क्या करना है, इन नंबर्स को इन ऑर्डर नंबर से माइनस करना है, तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। 144 माइनस 1, पहले ऑड नंबर को कर रहे हैं हम। सो 143, आपको 143 के बाद ये हो गया, अब आपको 3 से माइनस करना है। हियर यू आर गेटिंग 140। अब 140 को आपको माइनस करना होगा 5 से, आप माइनस करेंगे आपको मिलेगा 135। अब आपको 7 से माइनस करना है, सो 7 से माइनस करेंगे आपको मिलेगा 128। अब आप 128 को अब आप माइनस करोगे 9 से, तो हमने 9 से भी माइनस कर लिया। व्हाट यू आर गेटिंग 119। फिर आप माइनस करोगे 11 से, 11 से माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 108। 108 को आप 13 से माइनस करोगे, सो यू विल गेट 95। 95 में अब आपको 15 को माइनस करना है, सो यू विल गेट 80। सो अब आपको 80 को 17 से माइनस करना है, सो 17 से अगर आप माइनस करोगे देन यू विल गेट 63। नाउ हियर इट इज माइनस 19। 19 से अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 44। 44 को हम 21 से माइनस करेंगे देन यू विल गेट 23। अब 23 को 21 से माइनस करेंगे, सॉरी आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। या 23, अब 23 से माइनस करना है, सो हियर आई एम गेटिंग 0। तब तक 0 नहीं आ जाता, आपको ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू करना है। अब आपको स्टेप्स कितने गिनने हैं, कितने स्टेप्स आपने यूज किए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज 12। तो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वही उसका स्क्वायर रूट होता है। सो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, दैट इज 12। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वही उसका आंसर होता है। सिमिलरली 81 का निकालना है, सो आप मुझे 81 का निकाल कर आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स मूव विद द 7th क्वेश्चन। So question number 7 is on our screen. So question number 7 is, the product of two numbers is 10,000 if one number is 16 times the other. So here the question is saying if one number is 16 times the other, तो इसको हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। वन नंबर, लेट मी कंसीडर द वन नंबर इज x, is means equals to 60 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना द अदर से। अब हमें कोई आइडिया नहीं कि अदर नंबर क्या है, सो लेट मी कंसीडर देन अनदर नंबर इज आल्सो गोइंग टू बी योर, लेट मी कंसीडर y। ओके, सो दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है आपके पास, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो हियर वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज 10,000, और आपने वन नंबर कंसीडर कर लिया 60 एंड अनदर नंबर, अगर अनदर नंबर हमें कंसीडर करना है तो फर्स्ट नंबर इज 60, फर्स्ट नंबर इज x, सो अनदर नंबर क्या होगा आपका, लेट मी से, प्लीज वेट फॉर अ मिनट, एट द प्लेस ऑफ इज लेट मी पुट इक्वल्स टू 16, द अनदर नंबर इज x। 16 टाइम्स है दूसरे नंबर का, तो पहला नंबर हम मान लेते हैं x है, उसका 16 टाइम्स, इट मीन 60x इज इक्वल्स टू 10,000। सो ये हो गया आपके पास 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000। सो x को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 60। अगर आप लेट मी डू इट ओवर हियर, अगर आप स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट, सो 10,000 डिवाइडेड बाय 16। तो 10,000 किसका होता है, दो जीरोस में से एक जीरो बाहर निकालना है, दो जीरोस में से एक जीरो बाहर निकालना है, सो 100। 16 किसका स्क्वायर होता है, दैट इज 4, सो 100 बाय 4 इज योर आंसर। और हम इसको आगे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, सो द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी योर 20। सो कौन सा नंबर है, नंबर क्या है 25। ओके, फाइंड दी नंबर्स, सो द नंबर इज, वन नंबर इज 25 और दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरे नंबर के लिए आपको 16 को मल्टीप्लाई करना होगा 25 के साथ, सो 16 into 25। सो इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई
it 16 into 25, then what you will get? You will get something around 400. So you will get 400. So this is your another number. So one answer is 25, one number is 25, whereas the another number is 400. Now let's move further with question number 8. So question number 8 is on our screen. So that is, the area of a square field is 576. A rectangular field whose length is twice its breadth has its perimeter equals to the perimeter of square field. Find the area of rectangular field. It means here the question is talking about the square and the question is talking about a rectangle. I'm not unable to make the proper square and rectangle. So let me make a small square, and here I'm making the rectangle. Okay, so the rectangular whose length is twice means 2 times its breadth. So let me consider the breadth as b. So here we can say that L is equals to 2b. Okay, so has its perimeter equals to the perimeter of square field. जो दोनों का perimeter है, जो भी दोनों का perimeter है वो equal है. So हम पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए साइड चाहिए, हमारे पास साइड है ही नहीं यहाँ पे, राइट. सो पेरीमीटर हम नहीं कैलकुलेट कर सकते स्क्वायर का. तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास है, दैट इज 576. So you all are aware with the formula of area of square, that is side square is equals to 576. So side is going to be equals to under root 576. अगर आप 576 का फैक्टर्स निकाल के अगर देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, so have a look. 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 ja 3. Now we just need to make the pairs. So let us make the pairs now. So from each pair we just need to take out a single number. So अब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे हम एक एक नंबर निकाल रहे हैं यहाँ से 2 into 2 into 2 into 3. So 2 to the 4, 4 to the 8, 8 into 3, 24. So 24, we can say that 24 meter is the side of the square. आपके पास साइड आ गई है अब स्क्वायर की. अब आप पेरीमीटर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. So now here the side is 24. Now let us calculate. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं. So क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दे रखी है कि पेरीमीटर जो स्क्वायर का होगा, which is going to be the पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये दोनों इक्वल होगा. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. सो साइड इज 24 and 2, length is 2b and breadth is b only. I'm just taking out the values from that given diagram. So यहाँ पे हम 4 इंटू 24 ही लिखते हैं और इस 2 को डिवाइड करते हैं बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है. सो हमने इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया. 2 plus 1 3b. जिस नंबर के सामने कोई नहीं होता, we need to consider 1. So 2 plus 1 3 and b. Here we can say 2. So 2 into 24. अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा. So 3 8 are 24, 8 2 are 16. So here I am getting the breadth is 16 meter. Okay. So क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर. सो ब्रेथ आ चुकी है हमारे पास. अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करना है, सो लेंथ इज गोइंग टू बी 2 ब्रेथ. सो 2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 32 मीटर. सो लेंथ भी आपके पास आ चुकी है 32 मीटर और ब्रेथ है आपके पास 16 मीटर. अब हम इजीली एरिया ऑफ रेक्टेंगल सॉल्व करते हैं. नाउ लेट्स मूव फर्दर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. So length is 16 and breadth is 32. If you are going to multiply these two, what you will get? 6 to the 12, 1 carry, 18, 20, 21, 512. So you will get 512 meter square. So this is our final answer. That is area of rectangle is equals to 512
12 square. Here we have completed the exercise 4D. If you have any kind of the query, you can drop it in the comment box. Thank you and have a great day. And please don't forget to subscribe and share.